फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम PYQ सीरीज़ कर रहे थे। हमने पेपर 2 के काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे पेपर्स कवर कर लिए हैं। हमारा पेपर 2 हिस्ट्री था और ये सारा हमने इंग्लिश में कवर किया है। सो एनीवन हु इज़ डूइंग MS Set in English, they can refer my page, my channel for history, and also now for paper 1 we will be covering up till 2016 and if possible beyond it. So without wasting much of the time, let's get started. The very first question, we are doing the paper set A. Okay, paper 1 ka set A. Now very first question, problem solving methods are used by teacher in dash level of teaching. Now there are different types of level of teachings like reflective, memory, understanding. Okay, basic नहीं है कोई भी. So memory, understanding, reflective are the levels of teaching. So इसमें से correct answer will be reflective. Yes, problem solving methods are used. So reflective, also known as introspective level. Okay, then इससे में it is the highest level, the most thoughtful, and it has problem raising and solving. Yes, problem raise भी कर सकते हैं, solve भी कर सकते हैं. Now next question, feedback of classroom teaching from dash is a valuable feedback for teachers. Now students and librarian, colleagues and librarian, students and parents, students and colleagues. From whom? The very logical question, किससे feedback मिलेगा? तो it will be positive, it will be from students and parents, to have which will help teacher. Okay, C. Now स्वयं रट लो इस टॉपिक को लिटरली, बिकॉज एवरी ईयर देर आर 1 or 2 questions on this. So what is स्वयं? स्वयं is study webs of active learning for young aspiring minds. Okay, what is स्वयं? Study webs of active learning for young aspiring minds. Okay, and this is launched by the Government of India to achieve 3 principles of education policy: access, equity, quality, through 4 quadrants: video lecture, reading material, self-assessment, and online discussion. Okay, and Swayam is part of MOOC. Dash is more suitable method for teaching of history. So for teaching history, which will be the more suitable level method? Role play, demonstration, experimentation, deductive. The very suitable is role play method, जिसमें हम रोल असाइन करेंगे. ओके, स्टूडेंट्स को, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अशोका, हिज फादर बिंबिसार, ग्रैंड फादर चंद्रगुप्त, सो ये मौर्य डायनेस्टी को वैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, थ्रू असाइनिंग रोल्स टू स्टूडेंट्स कि कोई अशोका, कोई चंद्रगुप्त बनेंगे. एंड नाउ नेक्स्ट, learning process is monitored by dash evaluation. Learning process is monitored by formative evaluation. Formative evaluation is very important because it can be carried out during the process or in the beginning. Like beginning में भी कर सकते हैं, during the process कर सकते हैं. It is a bridge between learning and teaching, and it can be formal or informal. Okay, it is a type of evaluation. बाकी समेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, ये भी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन ही है, जैसे कि हम जानते हैं. लेट्स गेट अ क्विक लुक एट अदर्स ऑल्सो. जैसे डायग्नोस्टिक, समेटिव यूजुअली एंड में आता है. समेटिव इवैल्यूएशन इज एट द एंड. देन डायग्नोस्टिक ये ड्यूरिंग द आता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस. and placement is also at the end.
ओके, सॉरी, प्लेसमेंट इज बिफोर इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग आता है एंड समेटिव आफ्टर, एंड में आता है. 6th, अ रिसर्चर मस्ट हैव डैश एट डैश. रिसर्चर मस्ट हैव रिसर्च एप्टीट्यूड. हाँ, अगर उसे रिसर्च करनी है तो उसमें एप्टीट्यूड भी तो रहना चाहिए, स्किल्स रहना चाहिए, एबिलिटी रहना चाहिए टू कंडक्ट द रिसर्च. लाइक, और कैसी स्किल्स रहनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशन सीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके. 7, रिकॉर्डिंग ऑफ डैश इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड मेमोइंग. रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव नोट्स. Okay, it aids analysis, generate new ideas, communicate findings. हम जैसे क्लास में नोट्स लेते उसी टाइप में कुछ प्रोसेस चल रहा है, रिसर्च चल रही है, उसमें नोट्स बनाना. 8, for detecting errors in teaching learning process, the appropriate data collection tool will be detecting errors in teaching learning process. It will be diagnostic test. It's a pre-assessment where teachers can evaluate students' strength and weaknesses, knowledge and skills, and इसी के थ्रू हमें पता चल जाएगा what are the problems of student. Okay, diagnostic test. 9th, if a frequency distribution has some extreme scores, then appropriate measure of variability will be. एक्सट्रीम स्कोर्स, यानी कि अगर एक 10 है तो एक डायरेक्ट 30, ऐसे एक्सट्रीम स्कोर्स आएंगे. वैसे हाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट में पिन पॉइंट हो जाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स, सारे एरर्स पता चल जाते हैं. 9th, इट विल बी क्वार्टाइल डेविएशन, जो एक्सट्रीम स्कोर्स बता सकता है. क्वार्टाइल डेफिनेशन इज अ रोबस्ट मेजर ऑफ variability. Okay, it's also known as interquartile deviation or interquartile range. Okay, also known as interquartile range. That is it's a major deviation in middle of the table, like difference between first and third quartile in table. बोला ना, जैसे उसमें बोला है एक्सट्रीम स्कोर्स, तो इसके थ्रू हम काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं. क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन. Yeah, sometimes it's good to go through Marathi also, as we are giving the exam for MH set, that is Maharashtra. Standard of research journal is decided on. Standard of research journal is decided on its impact factor. Impact factor, yes, it is to evaluate the relative importance of a journal within its field and measure the frequency with which average article in a journal cited in a given period. Yes. So 10 or higher, remarkable. 3, good, and less than 1, it's average. Impact factor और IF इवेल्युएट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ अ जर्नल, रिलेटिव इम्पोर्टेंस, यानी कि वो कैसे, अगर 10 जर्नल्स है उसमें ये वो कैसे स्टैंड आउट होगा. ओके, नाउ इट्स अ पैसेज. डू यू वांट मी टू गो थ्रू द पैसेज? Political education has many connotations. It may be defined as the preparation of a citizen to take well-informed, responsible, and sustained action for participation in the national struggle in order to achieve the socio-economic objectives of the country. The predominant socio-economic objectives in India are the abolition of poverty and creation of an egalitarian society. That would replace the present traditional feudal hierarchical social setup. Under the colonial rule, the Congress leaders argued that political education was an important part of education and refused to accept the official view that education and politics should not be mixed with one another. But when they came to power in 1947, they almost adopted the British policy and began to talk of education being defiled by politics. Hands of education was the call to the political parties
But in spite of it, political infiltration into the educational system has greatly increased, in the sense that different political parties via each other to capture the mind of teachers and students. The wise academicians wanted political support without political interference. What we have actually received is infinite political interference with little genuine political support. This interference with the educational system by political parties for their own ulterior motives is no political education at all, and with all around growth of elitism, it is hardly a matter for surprise that real political education within the school system has been even weaker than in the pre-independence period. Now 11th पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया. आई विल अपलोड द लिंक ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से पढ़ लेना. बट लेट्स कट इट शॉर्ट. द वर्ड दैट इज़ नियरली अपोजिट द मीनिंग ऑफ डिफाइल इज़ डिफाइल. मतलब यहाँ पर हमने वर्ड पढ़ा था डिफाइल. सॉरी, see, almost adopted the British policy and began to talk of education being defiled by politics. ओके, सो यहाँ पर हमें डिफाइल का अपोजिट मीनिंग देखना है. डिफाइल माने सो इट इज़ ए सैंक्टिफाई. मतलब डिफाइल माने फुल. सो डिफाइल लाइक इम्प्योर या डैमेज्ड, एंड सैंक्टिफाई यानी प्योर हॉली. ओके, now the author of the passage suggests the main purpose of political education should be. Now there are two options जो आंसर की में दिए हैं, वो टू थे. जैसे propagating elitism and creating an egalitarian society, the main purpose. Okay, in the official answer key there are two answers, propagating elitism and creating an egalitarian society. like दोनों भी काफ़ी अपोजिट है, but still. and yes, ये दोनों डिफरेंट है, मराठी एंड इंग्लिश. ओके, according to the passage the close meaning of connotation is, closed meaning of connotation is B, invoked meanings, like many different meanings. Invoked like one second, there is some problem. like connotation is mentioned or something, example, mentioning an example and something like that. Okay, how has politics been related to educational institutions? 14th, without political support there was quite a lot political interference. Option D, without political support there was quite a lot political interference. Now in the passage hands of education suggests that, here also two meanings are there, two answers are given. Protect the education system, be silent spectators of the educational system. like both are of opposite meaning, but still it is given in the official answer key. You can go through the passage and read it with peace and then find the answer with yourself. In any organization, information is being shared among all the members. This type of communication is. Now, if information is shared among all the members, then it's internal, and if it's shared outside the group, it's external. Okay. Upward यानी कि if information is from the employee to the employer, and downward if it's from the board to the employees.
Okay. Cultural difference between sender and receiver may affect effectiveness of the communication. If for suppose if the sender is Marathi and if the receiver is Tamil, okay, then they both have different language, different culture, and if the Marathi person sends the message in Marathi, the receiver cannot understand it, and thus effectiveness is affected. 18th, according to the communication, according to Dash means communication means a transfer of understandable information between two persons. Let's see, the answer is G.G. Brown. Option B, G.G. Brown. Yes, according to G.G. Brown, communication means a transfer of understandable information between two persons. Now 19th, effective communication may be shown by effective. Here it is asked effective, like person is also Marathi, sender is also Marathi, receiver is also Marathi, and then both communicate. So it's A, MS minus MR is equal to 0, where MS is message sent by sender and MR is message received by receiver. Okay. Option A. 20. The element which badly affect the effectiveness of communication is, which badly affect the effectiveness, it's D, noise. If feedback, it will positive, projection, it is also positive, message वो तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, so it's D, noise. Now let's check out the questions on maths and computer. I already said we will be doing here only. So the number of 8-bit computer words formed by zeros and fives with exactly the 3 ones and 5 zeros. 8-bit number चाहिए. It's very simple, एकदम easy way में बताऊँ क्या? It's question of factorization. ठीक है, 8-bit का चाहिए जिसमें 3 ones ना और 5 zeros होना. Like if you're like 1 1 1, sorry, my pen is not working properly. 1 1 1 0 0 0 0 0 ऐसे, एंड इसके अलग अलग अरेंजमेंट्स. सो हमें 8 नंबर्स चाहिए. सो लेट्स टेक 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. नाउ इसको हम डिवाइड करेंगे 3 वंस, यानी कि 3 ones 3 into 2 into 1 and 5 zeros, यानी 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अभी कट ये पूरा कट हो जाएगा एंड बचेगा सिर्फ 8 into 7, that is 56. So the correct option is 56. Okay, sorry my pen is not working properly. Hope you guys understand this. एकदम easy way में बताया मैंने without any problem. अभी let's check 22. The following is a list of various committees with their members x1, x2, x3, x4, x5, x6 and x7. How many ways can we select representatives of committees so that no two committees have same representatives? हमें दोनों में सेम रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चाहिए. अभी अगर हम देखेंगे, इफ़ हम 2 कमिटीज सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि AB x1 एंड x2 लेंगे, तो इसमें ABCD है, इसमें XBDY. ओके, सो इसमें BD आ गया, B एंड D इसमें भी आ गया, कैंसिल. अब हम अगर x2 x3 लेंगे, इसमें x है y है, इसमें भी x है y है, सिर्फ A पर अलग होता है, नॉट पॉसिबल. देन अगर हम x3 एंड x4 लेंगे, सो इसमें y आ गया कॉमन, कैंसिल. नाउ x4 x5 D आ गया कॉमन, B इज़ कॉमन. देन x6 x5 x6 XAB AB कॉमन. देन x6 x7 XY AB YAB कॉमन. सो ऐसे हमें एक भी
ग्रुप नहीं मिलता है जिसमें हम मैच कर सके। आप ऐसे जैसे x1 x3 पे देख सकते हैं, सारे ग्रुप्स ट्राई कर सकते हैं। द आंसर विल बी 0, नो कमिटीज। Now, in a rectangular standing arrangement of a person in 4 rows, each row having 4 persons. If jth person in the ith row is asked to move to place of ith person of the jth row for all I 1 2 3 4 and j is 1 2 3 4, then how many persons have changed their original position? How many persons have changed their original positions? अभी इसमें ना काफ़ी जगह पर आंसर्स 16 बता है। इवन ऑन गूगल आंसर इज 16, बट द ओरिजिनल आंसर इज 12 इन द आंसर की इट्स 12। सो आई विल गिव यू एकदम इजी ट्रिक देती हूँ मैं। अभी यहाँ पर क्या है बताया है, फोर रोज एंड फोर रोज हैविंग ईच रो हैविंग 4 पर्सन। ओके, सो हम इसे लेंगे 4 into 4 16. Now how many person have changed their original position? So इसमें ऐसे person रहेंगे जैसे कि एक टेबल बताती हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4। सो ऐसे अभी इधर ये जो ग्रुप है 1.12 सॉरी 1 पॉइंट नहीं आएगा, 1 2 1 3 and 1 4. So 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4. Now 4 1 4 2 and 4 4. तो इसमें जो ये है ना, ये 1 1 2 2 3 3 वाला ग्रुप, ये वाला चेंज नहीं होगा। ओके, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसे कितने लोग मिल रहे हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं? 4 है जो चेंज नहीं हो रहा है, -4। सो द आंसर इज 12। आई नो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर ये टेबल में। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल मेक इट प्रॉपरली। जस्ट 1 minute। ओके, अभी ये ज़्यादा क्लियर है? यस, पहले से तो है। जो है अभी ये मैंने जिस राउंड किया है, ये वाला ग्रुप है जो पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो हमें ऐसे चार पर्सन है जो पोजीशंस चेंज नहीं करेंगे। सो दिस विल बी द परफेक्ट। ये मैंने ओएसिस करियर पॉइंट वाले जो पेज है जो मराठी में बताते हैं, मैंने उनसे लिया है ये। थैंक यू फॉर दैट। यस, नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स, नो नथिंग। I will be thankful if I get idea to share. Okay, because this question was in different ways, explained in different ways on different sites, so I have to come with the proper answer. Now next 24. A water tank fills in 6 hours with the first tap. It takes 12 hours for another tap to fill the tank. If both the taps are turned on simultaneously, how long will it take to fill a vacant tank? Okay, so अभी जो एक टैंक है उसे लगता है 6 hours, सेकेंड टैंक है उसे लगता है 12 hours. सो जो पहली टैंक है, टैंक कितनी फिल हुई है? 1/6 ए से, एंड 1/12 बी से. नाउ वेरी सिंपल कट शॉर्ट, 1/6 इंटू 1/12 इज इक्वल टू टाइम टेकन x. सो 1, अभी हम डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, 2/12 प्लस 1/12, 2/12 plus 1/12, 3/12, that is 4. 3 1s are 1/4. 1/4 is the tank filled.
So the time taken will be 4 hours. Okay, time taken will be 4 hours. समझा? कॉमन है एलसीएम वाला जो मेथड रहता है, कॉमन डिनोमिनेटर वाला, हमने वो मेथड से किया है. सबसे ईजीएस्ट वे में जो जैसे पॉसिबल है आई विल ट्राई टू गिव द आंसर्स. ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हमारी पढ़ाई है, सो आई विल मेक things easy for you guys and for myself also. If x gets 10% points higher than y, then what is the percentage of y gets less points than x? अभी ये क्वेश्चन तो सीधा ड्रॉप कर दिया गया था हमारे पेपर में, बट अगर रहता था तो इसका आंसर ऐसा आएगा. इसका आंसर ऐसा था 9/11 ऐसा था इसका आंसर, जो इसमें नहीं आया क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया था कि इफ़ x gets 10% points higher than y, तो like 100 into 10 divided by 100 plus 10. Okay, so 100 नीचे आएगा 110, 100 into 10 by 110, फिर 0 कट, देन 11 इंटू और 100 इंटू 1. तो इसको ऐसा बताया गया था कि 11 के टेबल में 99 कब आएगा, 9 सा, सो 9 सा 99 बाय 1/11. ऐसा उसका सल्यूशन था पेपर में जहाँ पर मैंने चेक किया था. सो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन इस वे में सॉल्व किया गया था. स्टिल इफ़ इट हेल्प्स ध्यान दे दो एक बार अगर है पॉसिबल तो, अदरवाइज लेट्स जस्ट ड्रॉप इट. वैसे भी ड्रॉप हो गया है, सिर्फ थोड़ा मेथड ध्यान में रख लो कि हमें जब परसेंटेज निकालना है तो हम किस वे में परसेंटेज निकाल सकते हैं. नाउ इन अ रनिंग रेस 26, in a running race, Rani was behind Shobha, who was ahead of Aditi. Rehana was behind Aditi and ahead of Rani. Which is the correct from front to back? Okay, अभी ना कभी कभी ये जो इंग्लिश में देते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, तो सीधा मराठी में भी हम पढ़ सकते हैं. राणी शोभाच्या मागे, आदिती पुढे, आदितीच्या पुढे. शोभा जो आदिती के पहले थे, और रेहाना आदितीच्या मागे आहे आणि राणीच्या पुढे. सीधा बता दिया कि रेहाना रानी के आगे है. अभी एक ही जगह पर रेहाना रानी के आगे है एंड आदिति से पीछे है. ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी. यस, इंग्लिश में भी देख लीजिए. लाइक रानी वॉज बिहाइंड Shobha, who was ahead of Aditi. Shobha was ahead of Aditi and Rani was behind. Rani behind है, मतलब शोभा और अदिति. Then रेहाना was behind Aditi. इसमें क्लियर कर दिया कि अदिति के behind रेहाना है and ahead of रानी, रानी के ahead है वो. So रेहाना अदिति और रानी के बीच में आएगी, which is the correct. Now arrange the following terms in a meaningful and logical order indicating a correct sequence. Let's quickly sum it up. मुझे इतना बड़ा सेशन नहीं बनाना है, इसे शॉर्ट चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं एंड यू गाइज हैव टू रिवाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मीनिंगफुल और लॉजिकल ऑर्डर. नाउ विंडोज़, वॉल्स, फ्लोर, फाउंडेशन, रूफ, रूम. सबसे पहले फाउंडेशन किस में है, 4 में, सी में एंड डी में. नाउ उसमें एक पॉइंट नहीं है, मिसिंग है 5th का. अगर हम ऐसे इलॉजिकल वे में अगर कभी हमने किया, सपोज एग्ज़ाम में जैसे कर लेते हैं हम, अरे ये ऐसा अलग दिख रहा है पॉइंट, वो भी तरीके से कर सकते हैं. एंड इफ़ वी अप्लाई लॉजिक, जहाँ ऐसे बोला गया है यहाँ पर, फाउंडेशन, वॉल्स, विंडोज़, रूफ, फ्लोर, रूम. ओके, हमारा रूम रेडी है.
विंडोज, वॉल्स, फ्लोर, फाउंडेशन, रूफ, रूम। एंड यहाँ पे फ्लोर माने फर्शी, फर्श। ऑप्शन सी। हॉर्स इज अ हार्बीवोरस एनिमल। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हॉर्स इज अ हार्बीवोरस एनिमल, जो घास खाते हैं। ओके, ये क्या है? परसेप्शन, कि घोड़ा घास ही खाएगा। नॉलेज और इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? थ्रू सेंसेस। यहाँ पर हमें कैसे पता है? हम जैसे पता है बिकॉज हमने घोड़े को घास खाते हुए देखा है, घोड़े को घास खाते हुए देखा है। सो हमें ओके, हॉर्स डेफिनेटली विल ईट ग्रास, सो इट्स द कॉमन परसेप्शन which we know through the senses. But there is also clash of opinion. I have read it in another that it is inference because we haven't seen the horse eating grass. यहाँ ऐसा बताया नहीं कि हॉर्स खा रहा है. It's like inference, अनुमान, जो कि assumption based है. Like हमें पता है घोड़ा घास खाता है, ये assume कर लेते हैं हम, ये assumption है. So in another key there was inference in another site, but in official key it's perception, so we will go with its. Challenge करना चाहिए था actually. Now some animals are intelligent animals are monkeys. All monkeys are now conclusion क्या है? All monkeys are intelligent, horses are intelligent. अभी let's draw Venn diagram कि some animals are intelligent. ये हो गया animals are intelligent, यानी कि animals है जो कुछ intelligent है, अभी कुछ intelligent है, इसलिए ये दोनों join किए. All monkeys are intelligent animals are monkeys. अभी animals भी है, intelligent भी है, और वो monkeys भी है. So ये वाला जो part है ये animals और monkeys के लिए जाएगा. एनिमल्स जो मंकीज़ है, जो एनिमल्स है और इंटेलिजेंट, तो ऑल मंकीज़ आर इंटेलिजेंट. हो गया? डन? यस, वी कैन गो थ्रू दिस. हॉर्सेज आर इंटेलिजेंट. अभी सम एनिमल्स दिया है यहाँ पर, सो वी कांट से ना कि हॉर्स इंटेलिजेंट है या नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा डायरेक्ट पता ही नहीं गया है. तो इसका आंसर आएगा ओनली वन. ऑप्शन ए ओनली वन. ओके, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, सो 29 का आंसर आएगा ऑप्शन ए ओनली वन. नाउ अगेन अ वेन डायग्राम. लेट्स कट द स्क्रीनशॉट ताकि आपको दिखे. ओके, विजिबल. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग द टर्म्स. नाउ द टर्म्स आर एंटरप्रेनर्स, मैरिड, वुमेन. एंटरप्रेनर्स, मैरिड एंड वुमेन. अभी मैरिड भी है, वुमेन भी है, एंटरप्रेनर भी है. ऐसा बताने वाला सिर्फ ये एक ही डायग्राम है, क्योंकि बाकी में देखो, अगर हम इसको मैरिड पकड़ेंगे, अगर हम इसे मैरिड लेंगे, इसे एंटरप्रेनर लेंगे, इसे वुमेन लेंगे, नहीं, क्योंकि मैरिड और इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं जमेगा. ओके, सो कैंसिल. यहाँ पर तो ये पूरा डिफरेंट ही बता दिया. सपोज इंटरप्रेनर है तो वो वुमेन नहीं रहेगी. आज तो काफ़ी वुमेन्स इंटरप्रेनर है, मैरिड वुमेन्स भी है, सो नो. इसीलिए ये मैरिड, ये वुमेन, ये इंटरप्रेनर. डन. ऑप्शन सी. Okay, now this is data interpretation. I have to cut the screenshot again. Which डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं पहले. फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ई एंड बी इज मैक्सिमम. ई एंड बी, ई और बी का मैक्सिमम डिफरेंस किस कंपनी के लिए? ऑप्शन में दिया है इंजीनियरिंग एंड अलाइड, एग्रो बेस्ड, केमिकल बेस्ड, टेक्सटाइल. सो इंजीनियरिंग एंड अलाइड है लास्ट वाला, 76 है, 166 है.
ऑलमोस्ट 90 का डिफरेंस है. ओके, देन उसके बाद में एग्रो बेस्ड है 86 165. 86 एंड 165 70 80 का डिफरेंस आता है, 79 80 का. देन केमिकल बेस्ड है 86 154. डिफरेंस इज अप्रॉक्स 60 के अराउंड का डिफरेंस 64. देन टेक्सटाइल बेस्ड है, सबसे कम है टेक्सटाइल बेस्ड 92 132, सिर्फ 40 का डिफरेंस है. सो मैक्सिमम पूछा है यहाँ पर, इट्स इंजीनियरिंग एंड अलाइड. ओके, इंजीनियरिंग एंड अलाइड. अभी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन डिस्ट्रिक्ट बी. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कितनी है 86 एंड टोटल इंडस्ट्रीज बी में कितनी 500. 86 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100. कट फाइव के टेबल में 5 1 5, रिमाइंडर 3, 7 35, रिमाइंडर 1, सो 0.2, 5 2 10. ओके, 17.2 है क्या, इट्स देयर 17.2%. काफ़ी ईजी था ना ये, ऐसे ही ईजी क्वेश्चंस आए तो कितना अच्छा है ना. नाउ 33. If a certain state 60% are married employees and 52% graduate employees, 32% are neither married nor graduate employees, find the percentage of married and graduate employees. Yes. So 60% है जो मैरिड है, 52% ग्रेजुएट है, 32% जो कुछ भी नहीं है, लाइक मैरिड भी नहीं ग्रेजुएट भी नहीं. ओके, सो नाउ हम एकदम सिंपल वे में जाएंगे. 60% को ए को 60 ले लेंगे, ए 60%, देन बी 52%, सी 32%. अभी हमारे पास मैरिड है और ग्रेजुएट्स भी, ये ग्रेजुएट्स में हम दोनों में से किसी एक को 60 को -32 कर देंगे. ओके, आंसर मिल जाएगा 48%. 62 48. जो नॉन ग्रेजुएट्स है, और लाइक हम उसे पकड़ सकते हैं कि यह जो मैरिड नहीं है, जो नॉन मैरिड है. ओके, अभी हमें 48% मिल गया है आंसर. सो इसका हम करेंगे, अभी ये जो 48 है इसे हम वापस से वेट अ मिनट, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी चेक इट. मैंने डाटा इंटरप्रेट गलत किया है क्या. ओके, सो जो हमें पहले तो 100 - 32 कर देंगे डायरेक्ट, वो हमारी स्पेस है, लाइक 100 - 32 टोटल 68%. ये इसमें से हम अभी इसको यूज़ कर पता करेंगे कि मैरिड एंड ग्रेजुएट कितने हैं. वो कैसे, अब हम लेंगे x = a + b - c और -d. जो हमारा 32 है -d, ये जो 68% आए इसको हम d करेंगे, d एज्यूम करेंगे. तो हमारा x क्या है, x = 60 + 52 - 68, 1 1 12 -68. सो कितना हुआ 44%. x की वैल्यू आई है 44%. कितना है 44. हमारे पास है ऑप्शन 44. येस, वी हैव ऑप्शन डी, 44% आर मैरिड एंड ग्रेजुएट. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मैथ्स, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ताकि आपको
अलग अलग वीडियोस ना देखना पड़े। हमने विंडो निकाला 32 जो ना मैरिड थे ना ग्रेजुएट थे, इसको डायरेक्ट हमने 100 से माइनस कर दिया, तो हमें एक वैल्यू मिली 68% जो कि मैरिड है या ग्रेजुएट है, दोनों का मिक्स है। ओके, और हमें ये जो मैरिड ग्रेजुएट ये दोनों का मिक्स है, उसमें से हमने निकालना था नॉन मैरिड है या अनमैरिड है बट ग्रेजुएट है, या ऐसा हमें निकालना था अजम्पशन। सो हमने उसे 68% निकाला, और जो दोनों वैल्यूज़ थे 60 + 52, इसको सब ऐड किया एंड इसको डायरेक्ट जो वैल्यू हमने निकाली थी डी उससे माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 44%। ओके, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि 100 - 52 करेंगे, 100 - 52 तो आएगा 48%। अब ये 48 को -32 करेंगे जो कि नॉन मैरिड नॉन ग्रेजुएट्स है, तो आ जाएगा ये नॉन मैरिड नॉन ग्रेजुएट्स में से ये जो है ये कम्प्लीटली ये अनमैरिड ग्रेजुएट्स, अनमैरिड अनग्रेजुएट्स, 16 जो है अनमैरिड अनग्रेजुएट्स, देन अनमैरिड भी है ग्रेजुएट भी नहीं है, तो अभी ये 60 को -16 कर देंगे जो कि मैरिड है। अभी हमें पता करना है कि मैरिड है बट ग्रेजुएट नहीं है, ये जो 16 है ये ग्रेजुएट नहीं है, हमें मैरिड प्लस ग्रेजुएट चाहिए, तो इससे भी आंसर आ जाएगा 44%। ओके, आपको दोनों में से जो वे इजी लगे आप उसके थ्रू कर सकते हैं। 100 लिया जो ओवरऑल परसेंट है, उसमें से -52 किया जो ग्रेजुएट्स है, तो हमें एक वैल्यू मिली 48% जो कि ग्रेजुएट्स है, प्योर ग्रेजुएट्स। देन ये 48 में से -32 किया जो कि नॉन ग्रेजुएट एंड नॉन मैरिड है, फिर ये नॉन मैरिड और नॉन ग्रेजुएट्स में को 48 - 32 किया 16, ये प्योरली नॉन मैरिड लोग हैं, नॉन मैरिड बट ये ग्रेजुएट है। जैसे कि ये प्योर ग्रेजुएट्स थे वैसे ये भी प्योर ग्रेजुएट्स नॉन ग्रेजुएट्स है, फिर इसको जो मैरिड लोगों में से माइनस किया 60, तो आंसर मिल गया 44%। चलो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। दिस इज ऑल्सो डाटा इंटरप्रिटेशन। मंथली एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम ऑफ अ सर्टन फैमिली आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो अभी ये फैमिली का है, फूड क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल एक्सेट्रा, अदर। तो अभी हमको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, हम थोड़ा पेज शॉर्ट करेंगे ताकि दोनों भी दिख जाए। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज एसोसिएटेड विद द सेक्टर अदर। अभी अदर का क्या एंगल हो सकता है, तो इसका अरे ये कैसे बंद हो गया, वैल्यू क्या है इसका। सबसे पहले तो हमारे पास में है फूड जो सबसे बड़ा है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू 108 प्लस 63 प्लस 72 प्लस 27 प्लस x। ओके, अभी 360, अभी हम डायरेक्ट x को माइनस करेंगे, 360 माइनस 270, ये टोटल होने के बाद में 270 आता है, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अदर की वैल्यू है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री। अभी फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द सेक्टर फूड। फूड का परसेंटेज फूड का डिग्री क्या था 108 डिवाइडेड बाय 360, टोटल कितना है 360 इंटू 100। ओके, ये कट 108 और 36 कौन से टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में, 12 सा एंड 4 सा, सो इंटू 10, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, सो 30% इज द आंसर। ऑप्शन में है क्या 30%? येस, इट इज़ प्रेजेंट, ऑप्शन बी
35 का आंसर है 30%। ओके, टोटल है ये 360 जो होता है वो टोटल रहता है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वैल्यू को टोटल से डिवाइड करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ फास्ट जल्दी। Which of the following is the correct full form of HTML? Hypertext Markup Language. HTML is Hypertext Markup Language. It is a standard markup language for creating web pages. Describes the structure of web pages and content. Yes. ये कब डेवलप किया था? In 1991. Hypertext Markup Language ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी यूज्ड है, इनफैक्ट मैक्सिमम वेबसाइट्स यूज़ करती है HTML. Now the internet access to common public in India was first introduced in 1995 by VSNL. ये क्या हो गया भाई? VSNL जो था विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL है ना अभी, जैसे पहले VSNL था। 1986 में इंडिया में आ गया था, बट ये था ईयरनेट, और ये सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए था, पब्लिक के लिए। यहाँ पर क्या पूछा है, कॉमन पब्लिक के लिए। कब आया था? 1995 में आया था। उसके बाद में 2000 में, 2001 में एंड 2022 में इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो आज इंटरनेट यूज़ करते हैं। Which among the 900 something million people, 900 million people, which among the following is most helpful to type regional languages on smartphone? हमें रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि अभी मराठी रीजनल लैंग्वेज है, इसे हमें टाइप करना है तो इट्स यूनिकोड। इट्स अ यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट ओवर 140,000 कैरेक्टर्स from 150 scripts. Yes, it has 150 scripts, approx 150 scripts, जो ऑलमोस्ट ऑल मेजर रीजनल लैंग्वेजेस कवर करता है यूनिकोड। नाउ 39 ड्रॉप हो चुका था। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिजिटल पेमेंट ऐप लिंक टू गूगल? इट्स तेज, जैसे तेज था बट ये इसको रीब्रांड किया था एज गूगल पे इन 2018। सो ये आंसर ड्रॉप कर दिया गया है, दिस इज ड्रॉप्ड। Now 40. Which among the following is the consortia for higher education e-resources linked to digital initiatives? It's eShodh Sindhu. eShodh Sindhu started in 2018 by merging 3 earlier consortia: UGC Infonet Digital Library Consortium, NLIST and INDEST AICTE कंसोर्टियम। AICTE जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होती है इंस्टीट्यूट, ऐसे 3 कंसोर्टिया थे 3 ग्रुप्स थे जिनको मिलाकर बना है eShodh Sindhu इन 2018। Now Kyoto Protocol is for आंसर की में दिया गया है, आंसर की में दिया है बी, ओजोन प्रोटेक्शन, बट Kyoto Protocol is for global climate change. As we all know, Kyoto Protocol is related to the climate change, global climate change. अभी इसमें आंसर की में बी क्यों दिया है पता नहीं, क्योंकि उससे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है। यस, इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल। एंड दूसरा है वियना कन्वेंशन, अरे
Yes. And global climate change, it is a Kyoto Protocol, which was an international treaty adopted in 1997 and force में कब आया था ये? In 2005, based on principle of common but differentiated responsibility. Yes, and बायोडाइवर्सिटी के लिए CBD है जो 1992 में आया था. नागोया प्रोटोकॉल है जो 2010 में आया था. इन फोर्स 2014. एनिमल्स के लिए या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है रामसार कन्वेंशन है. साइट्स CITES 1973. Which one of the natural system is used for hot water for domestic purpose? डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये चीज़ ध्यान में रखो. डोमेस्टिक पर्पस के लिए इट्स ऑप्शन ए सोलार थर्मल. ओके, सोलार थर्मल जो होता है ना छत पर, सोलार पावर, सोलार प्लेयर ऐसे रहते हैं. काफ़ी लोगों के टेरेस पर होते हैं ये गर्म पानी के लिए. एंड इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये. अभी जैसे हर घर सौर ऊर्जा स्कीम है उसमें भी बताया गया है इसके बारे में. देन सोलार फोटोवोल्टेक, इट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. जियोथर्मल है, अर्थ की हीट से पानी गर्म करते हैं. लाइक वो भी काफ़ी स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही होता है जहाँ पर ये हॉट वाटर या गर्म पानी के जो फाउंटेन्स रहते हैं वहीं पर. देन सोलार डाइजेस्टर, ये ऑर्गेनिक मैटर को फ्यूल में कन्वर्ट करता है एंड इससे हीट भी बनता है. बट इट्स नॉट एक्सेसिबल एट द डोमेस्टिक पर्पस. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव and hard to use. Excess growth of aquatic plants in our water bodies is due to increase in nitrate and phosphate. Nitrate and phosphate अगर moderate amount में हो तो वो plant growth को help करते हैं. and excess हो गए तो ओवर ग्रोथ करते हैं जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जिससे पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फिशेस मर जाती है. येस, मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर. Which of the following air pollutant is responsible for acid rain? Acid rain किससे होता है? It's a reaction between sulfur dioxide, nitrogen oxide with H2O, water and oxygen and other chemicals. ये सबको मिलाकर होती है acid rain. Yes, जो कि हमें भी अफेक्ट कर सकती है, हमारी स्किन को भी अफेक्ट कर सकती है. It can harm the monuments. Okay, here there is only one SO2, sulfuric acid or sulfur dioxide. Sulfuric acid is H2SO4. Now 45. What part of the municipal solid waste can be put in use as soil conditioners by using composite soil conditioners? Composites. Composting क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो कंपोस्ट होता है इट्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड थर्स इट हेल्प्स इन सॉइल कंडीशनिंग. बाय द वे, व्हाट इज पायरोलिसिस? इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्ट होता है बायोचार में, विच इज़ अ टाइप ऑफ चारकोल जो एज अ फर्टिलाइज़र एंड सॉइल कंडीशनर यूज़ किया जाता है. बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए इट्स नॉट सुटेबल. देन बर्निंग, ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं ऐश में, राख. एंड इंसिनरेशन, इट्स ऑल्सो ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू ऐश बट इन अ कंट्रोल्ड वे. बर्निंग से पोल्यूशन ज़्यादा होता है बट इंसिनरेशन से पोल्यूशन कम होता है. इट्स लेस पोल्यूटिंग. एंड ये यूजुअली होता है डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट के लिए. हमने सबके डेफिनेशंस, हमने सबके मीनिंग्स देख लिए हैं. ओके, एंड पायरोलिसिस से भी होता है थोड़ा पोल्यूशन. इंसिनरेशन से कम होता है, CO2 NO नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं. एंड बर्निंग से तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मीथेन एंड ऑल. एंड इनफैक्ट पायरोलिसिस से भी मीथेन रिलीज होता है. ओके. In Mughal period, 46th, in Mughal period, higher education learning centers were known as
हायर एजुकेशन वाले जो रहते थे वो मदरसाज रहते थे। एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल्स वाले जो रहते थे वो मकताब्स रहते थे, एलिमेंट्री स्कूल। देन खाजकाई where the Islamic school which focus on Quran and other religious books, and अरबी schools जो रहते थे वो अरेबिक ग्रामर एंड लिटरेचर के लिए रहते थे। ओके, मदरसाज, अभी भी मदरसाज होते हैं। 47 रूसा स्कीम इज लॉन्च मेनली टू प्रोवाइड, रूसा स्कीम इज लॉन्च मेनली टू प्रोवाइड फंडिंग टू स्टेट लेवल हायर एजुकेशन। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब स्टार्ट की थी? इन 2013। ओके, फंडिंग टू स्टेट लेवल हायर एजुकेशन। देन 48 the science that deals with the relationship of various organisms with their environment is known as, relationship of various organisms with their environment, it's ecology। option C, ecology। yes, anthropology is study of humans and their cultures। economics, like money related and all, finance, money। geology is study of earth। 49 UGC has been introduced induction course for teachers in higher education to prepare for teaching। पता नहीं कैसे दिया है बट ऐसे ही दिया है। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम इन 2019। एंड ये फर्स्ट कब हुआ था प्रोग्राम? सबसे पहले कब आया था? इन फोर्स 2020 में आया था, जनवरी 2020। ओके, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। सी अगेन, इसी पेपर में स्वयं के ऊपर 2 क्वेश्चंस आ गए। स्वयं is a program platform is developed for technical subjects, humanity subjects, management subjects, all of the above, all the subjects, it's all the above subjects, क्योंकि इसमें टेक्निकल है, ह्यूमैनिटी है, मैनेजमेंट है, सब कुछ है। yes, so hope you like the session, please do like, share and subscribe। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इंग्लिश में एंड हिंदी में इसके ऊपर ज़्यादा कहीं पर वीडियोस है नहीं, एंड जो वीडियोस है वो इतने कुछ जो सब कुछ कवर नहीं करते हैं। आई हैव गॉन थ्रू मैनी वीडियोस एंड आफ्टर दैट ओनली आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो। ये थोड़ा बड़ा बन गया है बट आगे के वीडियोस हम थोड़े शॉर्ट बनाएंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। एंड येस, इफ़ पॉसिबल इस वीडियो को भी आप 1.5 या 2 पे 1.75 वाले स्पीड पर भी देख सकते हैं, no problem। hope you guys enjoyed it। let me know if you have any problem, any doubt, just comment me, or I will also share the telegram link, वो भी चेक कर लीजिए। and if you want to connect with me, comment on my channel, I will try to connect you, or I will soon provide my Instagram handle। okay, thank you, keep learning, all the best।